अच्छा वो आए, अच्छा आ गया। हाँ जी। अब थैंक यू। Hello students, good morning. So today we'll continue with the capital budgeting. Questions already have sent to you which we are going to discuss today. One question is 4.4 and the second question we will discuss is 4.6. These questions are there in the group as well. And if you are not a part of the group, you can open a book by R.P. Rastagi and you can look at problem 4.4. Okay, 4.4. Let us wait for 2 more minutes because the class timings are at 10. It is 9:58. Some students may join. Some more students may join. So within 2 minutes, we are going to start. Okay, I think not many students have joined more. So first we'll discuss problem 4.4. Now as per this problem, the company is thinking about investment in a project which costs 110 lakhs. 110 lakhs means 1 crore and 10 lakh and has a life of 10 years. So the life of the machine is 10 years. So at the end of the which its scrap value is likely to be 10 lakhs. 10 lakh is the salvage value or scrap value. It is same. Sometimes we write it as salvage value, whatever we can recover at the end of the useful life of the project. And also we call it scrap value. So its scrap value is 10 lakhs. So what does it mean? We have to depreciate a total amount of 110 lakh minus the scrap value over a period of 10 years. So the method suggested by the question is straight line method. It means the machine has to be depreciated on SLM basis or straight line method basis. So what will be the depreciation per year? 1 crore 10 lakh minus 10 lakh because salvage value is 10 lakh divided by 10. So 10 lakh per annum will be the depreciation, right? So the cost is 110 lakh, salvage value minus salvage value 10 lakh. 10 lakh is the salvage value, which we can dispose of at the end of the useful life. So what is the depreciable value? Means the value which we have to depreciate. That is 100 lakh. 110 minus 10. So depreciation per year will be 100 lakh divided by 10 because the life of the machine is of 10 years. So 10 lakh per annum per year we have to depreciate. Okay, 10 lakh per year we have to depreciate. Now, if we will install this machine, it will help in increasing the profit after tax of 10 lakh per annum. PAT. Profit after tax will increase by 10 lakh every year if we install this machine. So PAT is given as 10 lakh, but we are more interested in cash flow after taxes, CFAT.
So you know how to calculate the CFAT. Just add depreciation value to the PAT. So depreciation is 10 lakh, PAT is also 10 lakh. So what does it mean? We will get a CFAT of 20 lakh. We will get a CFAT of 20 lakh. Okay. 10 lakh is the profit plus 10 lakh is the depreciation which we will be getting if we install this machine. अगर हम ये मशीन लगाते हैं तो 10 लाख हर साल डेप्रिसिएशन होगी और 10 लाख अतिरिक्त हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, विच इज आफ्टर टैक्स, ऑलरेडी गिवन आफ्टर टैक्स। वो हमको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये गिवन है। तो मतलब है 20 लाख का सी फैट हमारे पास अगले 10 साल के लिए आएगा। वी विल गेट सी फैट ऑफ 20 lakhs फॉर नेक्स्ट 10 years। एक और चीज आएगी हमारे पास, दैट इज एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन we will get 10 lakh rupees as salvage value, as scrap value। जब मशीन की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, मशीन की उपयोगिता कब खत्म होगी? 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद हमें 10 लाख रुपया और मिलेगा। We will get 10 lakh rupees extra। So simply we have to calculate the present value of these two values। दो वैल्यू है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। तो जो पहली वैल्यू है 20 लाख, वो एन्युटी है। एन्युटी कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, क्योंकि सेम अमाउंट है ना। एन्युटी क्या होता है? जब सेम अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए, तो इस केस में डेफिनेट टाइम पीरियड जो हमारा है वो 10 years है। जो निश्चित काल है वो 10 वर्ष का है। तो 10 वर्ष के लिए हमें 20 लाख रुपया हर साल बचाना है, तो दैट इज सी फैट। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। वी विल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू? तो इसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू एट व्हाट रेट? रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 12%। क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है 12%। सो वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी फॉर एट द रेट ऑफ 12% फॉर 10 years। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट किया वैल्यू बुक में से, ये हमें टेबल में से फाइंड किया वैल्यू 5.65। 5.65 इज द वैल्यू ऑफ एन्युटी, PVAF, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। 10 years, कितने साल के लिए देखना है? 10 years। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखना है? 12%। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 5.65। ठीक है, 5.65 प्लस 10 लाख। 10 लाख ये कौन सा है? ये स्क्रैप वैल्यू है। दिस इज द स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू। लेकिन ये सिंगल वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, सिंगल। तो इस केस में हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, PVF। कौन सा फैक्टर देखेंगे? PVF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, तो ये हमने जो फैक्टर देखा है वो है 3.22। 3.22 इज द वैल्यू। अब दोनों वैल्यू को हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, 20 लाख को गुना करेंगे 5.65 से और 10 लाख को 3.22 से। तो जो भी दोनों का टोटल आएगा उनको हमने ऐड कर दिया। वी हैव एडेड दिस टुगेदर and the total is 1 crore 16 lakh 22 lakh 22,000। 1 करोड़ 16 लाख 22,000। 1 करोड़ 16 लाख 22,000। लेकिन हमको कैलकुलेट करने हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस? आउटफ्लोस हमारे क्या थे? जो मशीन हमने खरीदी है ना 1 करोड़ 10 लाख की, 110 लाख की, वो माइनस करेंगे। तो 1 करोड़ 16 लाख 22,000 में से हमने 1 करोड़ 10 लाख माइनस कर दी। वी हैव डिडक्टेड 1 करोड़ एंड 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख। तो जो प्रेजेंट वैल्यू वो निकल के आई है वो है 6 लाख 22,000, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो से ज्यादा है। इट इज मोर देन जीरो बिकॉज इट इज इन पॉजिटिव। पॉजिटिव में है, जीरो से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल है। प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा है। द प्रोजेक्ट इज गुड फॉर द कंपनी बिकॉज इट विल हेल्प इन
maximizing or increasing the wealth of the shareholders. तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाने में ये प्रोजेक्ट हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि इसकी एनपीवी पॉजिटिव है, बिकॉज इट हैज ए पॉजिटिव एनपीवी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6.4. Sorry, 4.6. We are going to discuss this question 4.6. तो 4.6 में दो ऑप्शंस हैं. देयर आर टू मशीन्स, मशीन 1 एंड मशीन 2. ठीक है, देयर आर टू मशीन्स, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2. बोथ रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000. दोनों में इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 की है, और कंपनी की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है. द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज 10%. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. The question already is there in the group. I have already sent you the question. Yes, this is the question. So, two projects, 1 or project 2. In both the projects, the amount of investments is same. The amount of investment is same, that is 10,000. Either we can select project 1 or project 2. The required rate of return is 10%. Required rate of return is 10%, and the tax rate is given as 50%. Tax rate is given as 50%. If we select project 1, the cash flow before depreciation and taxes. Just carefully read the word. The word is cash flow before depreciation and tax. So this is CBDT, cash flow before depreciation and tax. For project 1, it is 4,000 per annum for next 5 years. 4,000 per annum for next 5 years. Okay, so in fact, these are two questions for project 1 as well as for project 2. We have to calculate all the things like NPV, payback, ARR, average rate of return, and IRR, internal rate of return. ठीक है, चारों चीजें हमको कैलकुलेट करनी है दोनों प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट ए के लिए भी और प्रोजेक्ट 1 के लिए भी और प्रोजेक्ट 2 के लिए भी. तो आई एम डूइंग इट फॉर वन प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट के लिए आई एम डूइंग इट इन द क्लास. तो आई एक्सपेक्ट यू टू डू द same for project 2 yourself as practice question and try to find out whether you can solve that problem or not, because this question is a good question because it covers all the methods which generally are asked in the examination. सारे वो method इसमें cover किए गए हैं जो कि examination में पूछे जाते हैं. So it's good question for practice. So you can do the second part yourself. Okay, so we'll start this solving. In this case, we have to calculate payback, ARR, NPV, and internal rate of return, right? So the first thing is we have to calculate the depreciation of the project. So in this case, the salvage value is 0. Salvage value of both the projects, either you select project 1 or you select project 2, the salvage value is 0. So it means the entire amount is to be depreciated. What is the outflow or the cost of the machine? Cost of the machine is given as 10,000. Okay. So cost of the machine is given 10,000. Depreciation straight away we can calculate 10,000 divided by 5 because this machine does not have any depreciable any salvage value. कोई salvage value नहीं है, तो हम सीधा इसको calculate कर सकते हैं. We can calculate it. So what is the depreciation? Depreciation is 2,000 rupees per annum. 2,000 रुपए प्रति वर्ष depreciation, straight line method से. Okay. Now we'll calculate the we have to calculate the cash flow after
टैक्सेस, CFAT। ज्यादातर क्वेश्चन में हमारी जो इंफॉर्मेशन चाहिए, इन मोस्ट ऑफ द मेथड्स वी रिक्वायर CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस। तो यू मस्ट लर्न हाउ टू कैलकुलेट इट। ठीक है, समटाइम्स सम स्टूडेंट्स सेंड मी क्वेश्चंस, instead of sending me questions individually, please try to see how we calculate. ठीक है, otherwise you can ask me anytime, not a problem. Yes, so these are the CBDT figures, 4000 minus depreciation. Why we have to deduct depreciation first? Because we have to calculate the taxable amount. ये टैक्स से पहले का अमाउंट है, अभी हमने टैक्स पे नहीं किया, लेकिन जो डेप्रिसिएशन है दैट इज एन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर। ये डेप्रिसिएशन हमें अलाउड है इनकम टैक्स के अंदर एज एक्सपेंडिचर शो करने के लिए, तो हमने ये डेप्रिसिएशन शो किया 2000 पर एनम। तो कितने अमाउंट पे हमको टैक्स देना है? व्हाट इज द अमाउंट ऑन विच वी हैव टू पे टैक्स? दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ओके, इसको आप टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज टैक्सेबल इनकम। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आ गया 2000 पर एनम। जैसे 4 में से 2 गए तो 2 बच गए। ओके, 4 minus 2, 2000 is the profit before taxes, right? So it will be same for all the 5 years, because in each of the years the amount of this figure is same, depreciation is also same, so this will also be same. Profit, this is profit, taxable income, so we have to pay tax at the rate of 50%. टैक्स रेट है 50%, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन में दिया गया है टैक्स रेट है 50%। तो टैक्स अमाउंट भी सेम आएगा 1000, 2000 पे 150% टैक्स निकालना है, क्योंकि ये अमाउंट सेम है, द अमाउंट इज सेम एवरी ईयर। तो 1000 पर एनम विल बी द टैक्स। So what we get? PAT, profit after tax. 2000 minus 1000 is PAT, profit after tax. तो ये भी सेम फिगर आ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आ रहा है 1000 पर एनम फॉर 5 years, टोटल अमाउंट इज 5000, 1111, टोटल 5 साल का टोटल कर लेंगे 5000 आता है। ये टोटल इसलिए किया है क्योंकि हमें ARR के लिए चाहिए। दिस फिगर वी रिक्वायर फॉर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसमें आप डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दें, 1000 प्लस डेप्रिसिएशन विल बी CFAT। बच्चे पूछते हैं कि CFAT की फिगर कैसे कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखो, लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली। 1000 प्लस डेप्रिसिएशन, दिस इज द फिगर ऑफ पैट प्लस डेप्रिसिएशन, ये आपको CFAT की फिगर है। CFAT इज 3000 पर एनम। अब हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल, हालांकि जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि ये एन्युटी है, फिर भी निकाल लो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15, 3000 प्लस 3000 6000 प्लस 3000 9000 प्लस 3000 12000 प्लस 3000 15000। ठीक है, ये 12000 में अगले साल का कैश फ्लो ऐड करेंगे तो ये 15000। दिस इज क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ओके, अब हम को सबसे पहले निकालना है पे बैक। नाउ ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन विच वी रिक्वायर फॉर सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस इज अवेलेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द पे बैक। तो पे बैक का अगर एन्युटी है, क्योंकि ये जो अमाउंट है कैश फ्लो की वो सेम है 3000 पर एनम, इट इज सेम ईयर आफ्टर ईयर। द कैश फ्लो फिगर इज सेम। ठीक है, द कैश फ्लो फिगर इज सेम 3000 for all 5 years, it is same, not changing. Okay, now the question becomes easier. Payback is outflows divided by the annuity.
डिवाइडेड बाय द एनुटी अमाउंट। तो ये हम फॉर्मूला इस केस में यूज कर सकते हैं पेबैक का, क्योंकि ये एनुटी है, ये सेम अमाउंट है 3000। अगर एक साल भी ये अमाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा 3000 से कम या ज़्यादा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, वो पुराना वाला जो मैंने पिछली क्लास में करवाया था वो यूज़ करेंगे। तो दिस इज 10,000 डिवाइडेड बाय 3000, तो 3.33 ईयर्स, 3.33, एक साल पूरा और दूसरे साल का 1/3 पार्ट, 3 साल पूरे और चौथे साल के 1/3, यानी कि 3 years and 4 months अप्रोक्सीमेटली, या फिर 3.33 ईयर्स, 3.33 ईयर्स ये आंसर आ गया। तो पे बैक पीरियड आ गया 3.33 ईयर्स। ठीक है, तो पे बैक एन्युटी वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बिकॉज द कैश फ्लोज आर इन द फॉर्म ऑफ एन एन्युटी, क्योंकि कैश फ्लो एन्युटी की फॉर्म में है, इसलिए हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। अगर ये एन्युटी की फॉर्म में नहीं होता तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एज वी हैव डन इन द लास्ट क्वेश्चन, वो वाला मेथड हमको यूज करना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कैलकुलेट करना है ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का जो हमारा फॉर्मूला है वो है एवरेज इनकम, एवरेज पैट यानी कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज पैट आफ्टर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज पैट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो एवरेज पैट निकालने के लिए हमको टोटल पैट देखना है। टोटल पैट कितना है? 5000। टोटल पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 5000। टोटल पैट इज 5000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ईयर्स हैं 5। तो एवरेज पैट हमारा निकल गया 1000। ठीक है, एवरेज पैट इज 1000। दूसरा हमको निकालना है, ये रहा एवरेज पैट 5000 डिवाइडेड बाय 5। और अब निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? हमारी शुरू में इन्वेस्टमेंट है कितनी थी? 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाय 2। जब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो एवरेज बाय डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 5 नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 5,000 इज अवर एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 5,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज पैट है 5,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,000। तो दोनों फिगर्स हमारी आ गई। फिगर्स क्या क्या आई? एवरेज पैट 1000 और एवरेज जो इन्वेस्टमेंट आई है वो हमारी आई है 5000। अब हम ARR निकाल सकते हैं आराम से। बट इज ARR? ARR इज 1000 एवरेज पैट divided by average investment 5000. So this figure is 20%. 20% is average rate of return, ARR. So you should keep one thing in mind. जब हम ARR निकालते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर चाहिए होती है। The figure we need is प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। बाकी सब मेथड्स में हमें CFAT की आवश्यकता होती है। In all other methods we require CFAT. This is the only method where we require PAT, profit after tax. ठीक है, तो ये तो हो गया ARR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 10% पे। वी हैव टू कैलकुलेट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। तो ये इस क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना थोड़ा सा इजी हो गया। इट इज इजी बिकॉज वी आर गेटिंग कैश फ्लो इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी। जो कैश फ्लो हमें एन्युटी के रूप में मिल रहे हैं। एन्युटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट इज सेम अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड और पेड every year
ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है 5 इयर्स और जो हमें एनुटी अमाउंट मिल रहा है वो 3000 मिल रहा है। सी फैट हमने कैलकुलेट कर ली है, ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड द सी फैट। ठीक है, सो द सी फैट फिगर्स आर सेम ईयर आफ्टर ईयर, 3000 3000 3000। जब ये फिगर सेम हो तो हम इसको बोलते हैं एनुटी। दिस इज नोन एज एनुटी, एनुटी ऑफ 3000 फॉर 5 इयर्स। तो अब हमको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम टेबल A4 का यूज करेंगे। वी विल मेक यूज ऑफ टेबल A4। प्रेजेंट वैल्यू इज एनुटी अमाउंट AA, एनुटी अमाउंट इज 3000 and what is the annuity amount? 3000 into present value of annuity factor PVAF into PVAF, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है एंड द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years. N5 R 10%. What is N? N is 5. What is R? R is 10%. तो ये वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? ये टेबल A4 से मिलेगी। The tables are already with you. I have sent in the group as well all the tables, or you can refer to the back pages of your book. अपनी किताब के जो पीछे वाले पेज हैं, लास्ट वाले, वहां पे देखिए इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 3.791। 3.791। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? 5 साल वाला जो कॉलम है वो देखेंगे और 10% इंटरेस्ट वाला देखेंगे। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 3.791। 3.79। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11,373। 11,373। दिस इज द वैल्यू यू विल गेट। अब हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस? 11,373। 11,373 is the present value of inflows minus present value of outflows. So present value of outflows is 10,000. In this case, the present value of outflows is 10,000. Okay. So what is the net present value? NPV. NPV is 1,373. 1,373. So this is the third part. Calculate the NPV of the project. NPV of the project for machine or project 1 is 1,373. Okay. One more question is calculate the PI, profitability index. तो profitability index मैंने आपको बताया था, it is very simple. 11,373, क्योंकि यही डाटा हमको यूज करना है. I think I have missed it, but now I will be doing it here. PI यहीं पे कर देते हैं. Profitability index, PI is equal to present value of inflows, divided by present value of outflows. It is present value of inflows. ठीक है, present value of inflows divided by present value of outflows. That is the profitability index. तो inflows की वैल्यू कितनी है? 11,373. So this will be 11,373 divided by 10,000. 11,373 divided by 10,000. So this will be 1.137.
1.137. Profitability index is 1.137. That is for project 1. 1.137. It is not that difficult. Once you have calculated the NPV, calculating this part becomes easier. एक बार अगर आप NPV कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है. Now the last part, that is IRR, internal rate of return. Internal rate of return is, you can say, conceptually it is difficult, but not that difficult if you will follow what we are doing in the class rightly. तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है IRR is equal to LRI. What is LRI? Lower rate of interest. LRI, lower rate of interest, plus present value at lower rate of interest, PVLRI. Present value at lower rate of interest minus outflows. Present value at lower rate of interest minus outflows divided by present value, ये same figure है दोनों. Present value at lower rate of interest minus present value at higher rate of interest. Present value at higher rate of interest. Brackets closed into higher rate of interest minus lower rate of interest. Higher rate of interest minus lower rate of interest. ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है. We have to use this formula. Okay. So present value is already, present value at 10% is already available with us. Present value at 10% is 11,373. Already we have calculated in previous part. So I will suggest you, अगर क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी गई हैं, कौन कौन सी, एनपीवी भी कैलकुलेट करना है आपको और आईआरआर भी कैलकुलेट करना है. यू हैव टू कैलकुलेट बोथ एनपीवी एज वेल एज आईआरआर. तो पहले हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा आईआरआर के बारे में. वी विल गेट सम हिंट, सम आइडिया अबाउट द आईआरआर. So now in this particular question, they have both. They have asked for both. They have asked for IRR and also they have asked for NPV. ठीक है, दोनों के बारे में पूछा है. तो ये क्वेश्चन में हमने NPV ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है. ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड द NPV and NPV of the project at 10% is 11,000. Sorry, this is the present value at 11,000. It yes, it is 11,373. But our investment is only 10,000. हमारी investment कितनी है? We want a value of 10,000 because our investment is 10,000. तो हमको lower PV चाहिए, lower present value चाहिए, जो कि 10,000 के बराबर हो. इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमें लोअर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए होती है तो डिस्काउंट रेट को बढ़ाना पड़ता है. हायर द डिस्काउंट रेट, लोअर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू. ये इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों में. डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, डिस्काउंट रेट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो 10% पे हमारी जो वैल्यू आई है वो 11,373 है. इसका मतलब आईआरआर 10% से तो काफी ज्यादा है, क्योंकि हमारा 10,000 है ना. तो हमने अब 20% पे करके देखें. ये ट्रायल एंड एरर है, जरूरी नहीं है कि 20% पे भी आ जाए एग्जैक्ट. वी विल जस्ट ट्राई. ठीक है, तो आप और कोई भी ले सकते हैं, जैसे 14%, 15%. तो फिर अगर आप 100% कॉन्फिडेंस से करना चाहते हैं तो गैप थोड़ा ज्यादा ले लीजिए. तो मैंने 20% पे कैलकुलेट करके देखा है कि इसकी वैल्यू क्या आती है. तो प्रेजेंट वैल्यू एट 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो आप ये कोई
फिक्स नहीं है, सिर्फ ट्रायल एंड एरर है, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेने से हमारी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, तो हम प्रेजेंट वैल्यू को कम ही करना चाहते हैं। तो 20% पे मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है इसकी 3000 एन्युटी अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर at 20%. At 20% the factor is 2.991. ये हमको टेबल 4 में से मिलेगा 2.991। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकली है वो है 8973। 8973। तो ये 10,000 से कम आ गई। पहली वैल्यू 11,373, वो 10% से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है, ये 10,000 से कम है। तो इसका मतलब है अब हम IRR निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन कैलकुलेट द IRR यूजिंग दिस फॉर्मूला। IRR इज इक्वल टू लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस आउटफ्लोस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों सेम है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू ये निकालेंगे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस लोअर रेट ऑफ। अब हम देखते हैं तो 10 और 20 में से कम कौन सा है। देखिए दो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए हैं हमने, 10 और 20। तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में से क्या है 10, तो 10 ले लिया, 10 प्लस, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, ऑलरेडी हमने निकाली है 11। 10% पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकली है 11,373, 11,373 माइनस आउटफ्लोस। आउटफ्लोस क्या होता है, कैश जो हमारी मशीन की लागत है। आउटफ्लोस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, वो 10,000 माइनस आउटफ्लोस 10,000, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 11,373 सेम, ऊपर वाला सेम, माइनस जो हमने प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, हायर रेट क्या है 20%, उस पे जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है वो है 8973, 8973 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% माइनस लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 20 माइनस 10, तो ये हमने कैलकुलेट किया है 10 प्लस ऊपर आ गया 1373, 1373 डिवाइडेड बाय 2400, नीचे 2400 आ गया इंटू 10, इंटू 10, 10 कहां से आ गया 20 माइनस 10 इंटू 10, तो ये हमारा आंसर आ गया 15.72। ये IRR है। बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है आंसर, बट दिस इज ओके, 15.72, ठीक है। सो दिस इज द IRR। सो procedure wise calculating IRR is slightly difficult than the other methods, but if you will follow the procedures correctly, you will be able to solve the problems relating to IRR. So in the second project 2, the cash flows are not in the form of an annuity. If you will look in project 2, the cash flows are not in the form of an annuity. These are given as mixed stream of yes, it is given in the form of mixed stream. So same procedure you cannot follow, particularly for payback. Only for payback your procedure will become somewhat difficult or somewhat different. Okay, so these are the cash flows. These are not in the same cash flows because
if you will look at this, depreciation will be same 2000. Depreciation will be same. These are the profit before taxes. Depreciation figure will be same 2000 per annum. Okay, depreciation will be same. So what we have to calculate profit before taxes. It will be 4000. Profit before taxes 4000, 1000, 0, nil, 3000 and 3000. This is profit before taxes. Tax at the rate of 50%. We have to pay taxes at the rate of 50%. So tax will be 2500 for this, 1500 and 1500. Okay. Taxes will be this much. So what we will get is PAT, profit after tax, PAT. For first year, it will be 2000. 2000. Second year, it will be 500. Third year, yes, no profit, no tax. So PAT, profit after tax will be 0. This will be 1500, 1500. 3000 minus 1500. Okay. And then you will calculate the CPAT. CPAT, I am writing it here because I don't have this space. So this is PAT plus depreciation. So CPAT will be PAT plus depreciation. It will be 4000 for the first year, 2500 for the second year, 2000, 0 plus, this will 0 plus depreciation for the third year. It will become 2000. Fourth year, it will become 3500. 3500. And for the last year, it will also become 3500. This is CPAT. Now, in order to calculate the payback, we have to calculate the cumulative CPAT. I'm doing it because in this case, the payback is to be calculated differently. Cumulative CPAT. How to calculate cumulative CPAT? Many students they are little bit confused about this, so that's why I'm doing it. 4000. 6500, 4000 plus this, 6500 plus this, 8500, 8500 plus 3500, this is 12,000 and 15,500. These are the cumulative cash flows. Okay. So 1, 2, 3 years have been completed, but we have not recovered our initial investment of 10,000. हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 10,000. और 3 साल के बाद हमको कितने पैसे मिले हैं? 8,500. तो कितना अमाउंट अभी और है जो हमें रिकवर करना है? व्हाट इज द अमाउंट विच वी हैव स्टिल टू रिकवर? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं बच्चे. तो अमाउंट जो रिकवर करना रह गया है वो है 1,500. 1,500 कहां से आया? क्योंकि 3 साल बीत गए हैं और हमें सिर्फ अभी 8,500 मिले हैं और हमको चाहिए 10,000. तो कितना अमाउंट बच गया जो अभी हमने रिकवर करना है? 1,500. ठीक है.
तो पे बैक निकालेंगे। पे बैक इज 3 कंप्लीटेड ईयर्स। 3 साल तो पूरे हो गए, अभी तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिला है। वी हैव नॉट रिकवर्ड अवर एंटायर इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा रह गया है जो हमने रिकवर करना है? वो रिकवर करना है 1500। कितना पैसा रह गया है जो रिकवर करना है? 1500। और अगले साल का कैश फ्लो कितना था? 3500, 3500। ठीक है, 3500। दैट वाज द कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब आप इसका निकाल सकते हैं पे बैक। सो दैट विल बी 3 + 3/7। ये 500 से डिवाइड किया तो 3/7। 3 + 3/7, दैट इज द आंसर। तो ये जो आंसर आता है पे बैक का, वो ईयर्स में आता है हमेशा। द आंसर इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, टाइम। टाइम में आता है ये आंसर। ठीक है, तो this is how you will calculate. So go ahead and solve this problem. CFAT already I have calculated for you. PAT is also calculated. Now try to calculate the NPV, ARR. Okay, all the things input you require is available in this question. Okay. So this is about capital budgeting. कैपिटल बजटिंग के मैंने आपको प्रॉब्लम्स करवा दिए काफी। अगर कोई सी प्रॉब्लम में आपको काफी ज्यादा बच्चों को डिफिकल्टी कोई लगेगी जो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इसका क्लास में डिस्कस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। क्लास में अब हमने दूसरी टॉपिक्स भी डिस्कस करने हैं, तो मैं ग्रुप में आपको उसके आंसर्स, अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगेगी तो आप मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में उसके आंसर भेज दूंगा। बट फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ, क्योंकि मैं चाहे 20 क्वेश्चन कर लूं या 50 कर लूं, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। ज्यादा फायदा कब होगा? जब आप अपने आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ, ओनली देन यू कैन बिकम परफेक्ट। ठीक है, so this topic is over from my side. Next topic is cost of capital. थोड़ा सा मैं आपको आज ब्रीफ हिंट इसका दे देता हूँ। Mainly we will cover this topic in the next class. तो जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द जॉब्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इज टू ऑब्टेन फंड्स फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए पैसा इकट्ठा करना, यह फाइनेंशियल मैनेजर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, to see that the company is able to get all the funds which it requires for its operations. इसको कामकाज करने के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता होती है उसको हमने प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस विच इंक्लूड्स इक्विटी। इक्विटी एक सोर्स है, डेट दूसरा सोर्स है, हम बोरो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। रिटेन्ड अर्निंग तीसरा सोर्स है। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? जो पैसा हमारा प्रॉफिट है, पास कुछ सालों से हमने अर्न किया है, द प्रॉफिट विच वी हैव अर्न्ड इन लास्ट फ्यू इयर्स, वी री इन्वेस्ट दैट इन द बिजनेस। दोबारा से उसका बिजनेस में निवेश कर देते हैं, पुनः निवेश, उसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। जो चौथा सोर्स है, फोर्थ सोर्स है, वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं और उसके बदले हम उनको डिविडेंड देते हैं। तो जब हम डेट रेस करते हैं तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब हम इक्विटी इशू करते हैं तो उनको डिविडेंड और उनकी जो
शेयर की वैल्यू वो बढ़ती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, हालांकि हम लीगल कंपल्शन में नहीं है कि हम कुछ पे करें, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो ज्यादा देर नहीं चलेगी वो, कोई भी कंपनी हो। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी प्रॉफिट कमाना एक आवश्यक काम है, एक जरूरी काम है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए, फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन से होते हैं? जो कि दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स, दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं उनको। वन इज गेटिंग इनकम बिफोर एनी इनकम इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। कुछ कोई भी प्रॉफिट या डिविडेंड अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते जब तक हम प्रेफरेंस डिविडेंड्स को पहले ना दें। और दूसरा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी की समाप्ति कर रहे हैं हम, वी हैव टू रिटर्न देयर कैपिटल फर्स्ट, उनकी कैपिटल को पहले देखना पड़ता है। दीज आर नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स। तो वाइल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इन चारों की कॉस्ट हम पहले कैलकुलेट करते हैं, हर एक की, डेट की, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की, फिर इक्विटी की और रिटेन अर्निंग की। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि एक सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम सेपरेटली, दैट इज स्पेसिफिक। और उसको कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इनमें वेट लगाते हैं, वेट, जैसे कि कितने परसेंट है। अगर इक्विटी 40% है तो उसका वेट हो गया 0.4, डेट 20% है तो उसका वेट हो गया 0.2, रिटेन अर्निंग्स 20% है तो उसका वेट हो गया 0.2। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। तो उसके बारे में ही हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कैलकुलेट द WACC। तो उसको हम दो स्टेप में सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। So this we will be doing in next class. So now you have, if you have any queries about today's class, you can ask. It is time for your question answer session. हाँ जी, कविता जी, good morning. Please don't send these messages. Good morning. Okay, good morning. प्रेजेंट वैल्यू कितने परसेंटेज की है और कितने ईयर की है? कौन से क्वेश्चन है बच्चे? आपने खाली हाफ क्वेश्चन लिखा है। सर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट की है और कितने, पहले क्वेश्चन में तो ये 12% की है और 10 इयर्स की दी है, दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 12% और 10 इयर्स। और दूसरे क्वेश्चन में 10% और 5 इयर्स। पहले क्वेश्चन में कितनी है? 12% एंड 10 इयर्स। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। इन द सेकंड क्वेश्चन इट इज 10% फॉर 5 इयर्स। ठीक है, तो यू हैव टू सॉल्व इट एज पर द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी अकॉर्डिंगली वी हैव टू लुक इनटू द वैल्यूज, राइट? नेम ऑफ द बुक आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स। नेम ऑफ द बुक इज RP Rastagi, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, RP Rastagi। ठीक है, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड बुक, यू नीड नॉट बाय द न्यू वन। पुरानी अगर किसी फ्रेंड से मिल जाए, किसी दोस्त से मिल जाए, या पुरानी आप खरीद भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स फर्स्ट क्वेश्चन में 50% दिया हुआ, टैक्स इज 50%। टैक्स रेट क्वेश्चन 1 में शायद 50% है, लेट मी चेक। हाँ, टैक्स रेट इज 50%।
It is given in the question. So in different questions, it will be different. Tax rate is 50%. और सी फैट, अच्छा क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बच्चे पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो हम ऐड बैक कर देते हैं। चलिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जैसे ये है 3000 है ना, 3000 हो गया क्यूमुलेटिव। अब ये क्यूमुलेटिव फिगर जो कैलकुलेट किया उसमें अगले साल की फिगर हम ऐड कर देंगे। 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 3 ये 6 प्लस अगले साल का 3 9, 9 को याद रखो, अगले साल का 3 कितना है 12, 12 को याद रखो, 3 अगले साल का कितना है 15। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्यूमुलेटिव कैसे ऐड किया हमने। क्यूमुलेटिव कितना है, कैश फ्लो कितना है 4000, उसमें अगले साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना हो गया 6500, उसमें अगले साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे 2000 8500, उसमें अगले साल का ऐड किया 3500 12000 हो गया, उसमें अगले साल का ऐड किया 15500, ये क्यूमुलेटिव है। तो क्यूमुलेटिव फिगर जो आपने अभी तक ली हुई है उसमें से अगले साल का जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे। आई होप योर आंसर इज, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ बच्चे, यू कैन आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड्स, ओके, अदरवाइज यू कैन सेंड मी अ मैसेज, आई विल ऐड यू, you can send me a message, I will add you. Okay. हाँ बुक मैंने बच्चे कई बार बता दिया, आरपी रस्तगी। आई थिंक न्यू स्टूडेंट्स आर कमिंग इन द क्लास एवरी डे। आरपी रस्तगी, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट 4 क्वेश्चंस IRR, तो उसका प्रोसीजर आपको 3-4 बार जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तभी समझ में आएगा। अब बार बार देखिए एक ही चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। 4-5 times already we have done it. Only when you will practice, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है। हाँ क्या डाउट है पे बैक में बच्चे, आपने लिखा तो है नहीं ना, कैसे बताऊं। नहीं, इक्वल और अनइक्वल के लिए सेम फॉर्मूला नहीं है। अगर इक्वल हो, एनुटी हो, तो हम कैश फ्लो डिवाइडेड बाय एनुटी लिख सकते हैं अगर इक्वल है तो। अनइक्वल है तो फिर पहले मैंने आपको बताया क्यूमुलेटिव कैश फ्लो वाला यूज करना पड़ेगा। अनइक्वल है तो क्यूमुलेटिव यूज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे वो मैंने आपको समझा ही दिया है। अगर इक्वल है तो एनुटी से कर सकते हैं। ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू शुभम। अंकिता, ओके। 3 डिवाइडेड बाय 7, 3 डिवाइडेड बाय 7 कर लो ना, कितना आता है 3/7। अगर 0.4 तो नहीं आता, शायद कुछ और ही आता है। लेट मी चेक, लेट मी चेक। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे तो आंसर पूरा है वैसे। 3 डिवाइडेड बाय 7 0.428 आएगा बच्चे। इट इज 3.428, 3.428, ठीक है हिमांशु, इट इज 3.428। I hope your question has been answered. Yashashvi, you have not asked the question. LRI है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम वाला जो इंटरेस्ट है उसको LRI। HRI है हायर रेट इंटरेस्ट, हाई रेट इंटरेस्ट। हायर हमने भी क्या लिया था 20, लोअर क्या लिया था 10,
ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक नॉर्मली वो एग्जाम में पूछते नहीं है, और ना ही हमारे पास इतना टाइम है। तो अगर डिस्काउंटेड पे बैक पूछेंगे तो जो कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही। आप कर लेना इसका एक आध क्वेश्चन, बट वी डोंट हैव द टाइम टू कवर सो मच। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4.4 वाला क्वेश्चन है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा बच्चे? पीवीएफ, ये सारा मैंने भेजा हुआ है। ये 4.4 0.322 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.322 है, ठीक है। नॉर्मली तो प्रैक्टिस ये है कि 1.5 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम कैपिटल बजटिंग। 1 या 1.5 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कैपिटल बजटिंग में। अरे यार, हमारी 10,000 की रिक्वायरमेंट है। अवर रिक्वायरमेंट इज 10,000। तो 3 साल के बाद हमने 8.5 रिकवर किए, और 4 साल के बाद 12 रिकवर किए, तो इसका मतलब है 3 और 4 साल के बीच में आ गया ना। इस तरह से पता करते हैं। 3.5 साल के बाद हमने इस 8.5 रिकवर किए, और 4 साल के बाद हमने 12 रिकवर किए। तो इसका मतलब 4 साल के बाद तो ज्यादा रिकवर कर लिए, 3 साल में कम रिकवर किए, तो इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में है, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बच्चे अभी शुरू नहीं किया, टुमारो विल स्टार्ट। मैंने खाली आपको हिंट दिया है अभी। अभी इसके बारे में चिंता नहीं करो, नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। पे बैक बेटे मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिया। अब आप अगर पहली बार क्लास अटेंड करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लास, ठीक है। सेकंड लास्ट बच्चे, अब उसके बाद 12,000 रिकवर हो गए ना हमें सेकंड लास्ट में, तो 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आएगा पे बैक, और 4 साल से पहले आ जाएगा। इन दोनों के बीच में है, वो 3 और 4 के बीच में है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट 10,000 है ना, इसलिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट कितना लेना है वो उसके लिए फॉर्मूला है। नंबर बेटा किसी भी फ्रेंड से ले लो। आई हैव 7 to 8 ग्रुप्स विद मी राइट नाउ। स्टूडेंट्स हैव made 7 to 8 groups in which I am sending all the number, all the information. Last page. Okay. Last page I will be sending. लास्ट पेज अभी मैंने लिखा है ना, तो वो अभी ग्रुप पे नहीं होगा, आई विल बी सेंडिंग इट, ठीक है। मॉडिफाइड आईआरआर नहीं है सिलेबस में, नहीं है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड आईआरआर क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लिंक तो नहीं है बच्चे, आप किसी भी फ्रेंड से ले लेना अपने, कोई किसी एक आध को जानते होगे, कई बच्चे हैं ग्रुप में, ठीक है। अरे यार, 3 और 4 के बीच में है ना, मैंने 3 के बाद 8.5 रिकवर हो गया, 4 के बाद 12 रिकवर हो गया, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच में है, इसलिए 3 किया है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू, ये तो प्रज्ञा, आई थिंक यू आर डूइंग फर्स्ट क्लास, ये पिछले 4-5 क्लासेस से यही चल रहा है। ये आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल 3 से देखनी है।
प्रेजेंट वैल्यू टेबल 4 से देखनी है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर PVAF 2.99 कह रहे हो ना आप? हाँ, ये 20% पे देखनी है। PVAF 20 ईयर्स के लिए 20% 5 ईयर्स के लिए। PVAF 20% 5 ईयर्स। टेबल 4 में से देखो वैल्यू, टेबल 4। अरे यार, 3 और 4 के बीच में से ना, इसलिए इसको 3 और 4 लिखा है। क्योंकि वो सिंगल अमाउंट है ना, 10,000 इज द सिंगल अमाउंट। ये एनुटी है, 5 साल रिसीव होना है, तो इसलिए ये PVAF है। ये सिंगल अमाउंट है इसलिए, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में। Okay, I think that's all for today's class. Thank you very much, all of you.